की ताजा खबरों के साथ पीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भवानीपुर उप निर्वाचन सहित और 2 विधानसभा केंद्र में निर्वाचन में तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी की जीत की खुशी चारों तरफ देखने को मिली। साथ ही बांकुड़ा के 3 नंबर वार्ड के तृणमूल कर्मी और समर्थकों में इसकी खुशी खासा देखने को मिली। भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज उपचुनाव में टीएमसी की जीत ने राज्य भर में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। बांकुड़ा के 3 नंबर वार्ड में टीएमसी कर्मियों में जीत की खुशी साफ देखी जा रही है। जिला तृणमूल मुख्य दिलीप अग्रवाल अबीर लगाकर पटाखा फोड़कर ममता बनर्जी की जयकार के साथ ही जश्न मनाए। रविवार उपचुनाव में टीएमसी की जीत को लेकर राहगीरों का मुंह मीठा करवाया गया। जिला तृणमूल मुख्य दिलीप अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा वोट के दौरान नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साजिश के तहत हराया गया था। शुभेंदु अधिकारी और चुनाव कमीशन की तरफ से की गई थी। आज भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी को जीत दिलाकर जनता ने यह साबित कर दिया कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री को चाहती है। কেননা আমরা জানি যে গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি 213টা সিট ক্ষমতায় নিয়ে পশ্চিমবাংলা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। পশ্চিমবাংলা 6টা সিটে উপনির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, তার মধ্যে 3টে সিটে উপনির্বাচন ইতিমধ্যে হয়েছে আর 3টে সিটে অক্টোবর মাসের 30 তারিখে উপনির্বাচন হবে। 3টে সিটে যে নির্বাচন 30 তারিখে হয়ে গেল, যার ফলাফল আজকে কাউন্টিং চলছে, তার মধ্যে ভবানীপুর, জঙ্গিপুর এবং শামশেরগঞ্জ। তার মধ্যে ভবানীপুরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা আমরা জানি গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন জোর করে মমতা ব্যানার্জির জয়লাভ ঘোষণা করার পরও সেখানে কারচুপি করে মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজকে সেটা আমাদের ভবানীপুরের মানুষ, ভবানীপুরের মেয়ে, বাংলার মেয়ে, ভারতের মেয়ে মমতা ব্যানার্জিকে বিপুল সংখ্যক ভোট দিয়ে তারা আজকে সেখানে জয়লাভ করেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় 40 থেকে 42 হাজার ভোটে মমতা ব্যানার্জি এগিয়েছেন। 60,000-এরও বেশি ভোটে মমতা ব্যানার্জি জয়লাভ করবেন। ইতিমধ্যে আমরা জঙ্গিপুরেও এগিয়ে আছি। শামশেরগঞ্জ যেখানে কংগ্রেসের ঘাঁটি ছিল, সেখানেও মানুষ কংগ্রেসকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে। পশ্চিম বাংলার বিরোধী শক্তি বলে আর কিছু নেই। পশ্চিম বাংলা উন্নয়নের সাথে ভবানীপুর থেকে আরম্ভ করে শামশেরগঞ্জ থেকে জঙ্গিপুর থেকে সমস্ত স্তরের মানুষ মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের সাথে আজকে হাত মিলিয়েছেন। আগামী দিনে লক্ষ্য 2024 লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করে সেখানে বিরোধী শক্তি ধ্বজা উঠবে। আমাদের সেটাই মেন লক্ষ্য আগামী দিনে। ওই কারণে রাস্তালা মোড়ে 3 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে মানুষকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি, বাজি ফুটাচ্ছি, আবির খেলছি। মমতা ব্যানার্জির এই আকাঙ্ক্ষিত জয়, যেটা আমরা ভাবতে পারিনি। এই যে যদি बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक बार फिर तृणमूल के लिए जश्न का मौका। उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत राज्य के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुकी है। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 20 के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह से जीत की खुशी मनाना शुरू कर दी।
तो मैं कर दूंगा तुझको এগিয়ে চলেছে। মাত্র 12 রাউন্ড হয়েছে, সেই 12 রাউন্ডে ইতিমধ্যে 35,000-এর বেশি ভোটে এগিয়ে চলেছে এবং বিজেপি সহ সিপিএম যে সমস্ত প্রার্থী দিয়েছিল তারা ধরাশায়ী হয়ে গেছে এবং বিজেপি বড় বড় মুখে কথা বলেছিল তাদের আজকে কথা মিথ্যা এবং ব্যর্থ সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে জননেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন তো বিজয়ের আর কোনো বাকি নেই, 12 রাউন্ড হয়ে গেছে, আর মাত্র 9 রাউন্ড বাকি। 12 রাউন্ডে আমাদের লিড হচ্ছে 35,000। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আজকে পুরো রাস্তায় নেমেছে। ডিজে এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে ঢাক সহকারে আমরা রাস্তায় নেমেছি, মিষ্টি করাচ্ছি, আবির খেলছি। বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গেছে, একদম বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গেছে এবং 2024-এর বিজয় মিছিলের শুরুয়াত এটা। भवानीपुर उपनिर्वाचन चुनाव में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की जीत से राज्य भर के तृणमूल कर्मियों में उल्लास है। इसी क्रम में आज आसनसोल शहर के हाटन रोड इलाके में तृणमूल कर्मियों ने एक विजय जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तीनों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत ने विशेषकर पार्टी सुप्रीमो व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा से ऐतिहासिक जीत की खुशी में पूरे राज्य के टीएमसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पूरे राज्य में टीएमसी कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार एक साथ होली और दिवाली मनाकर कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आसनसोल में भी विभिन्न जगहों पर देखने को मिला। जैसे ही मतगणना शुरू हुई और 9वें राउंड के बाद जब टीएमसी उम्मीदवार अपने ऐतिहासिक बढ़त की तरफ बढ़ने लगे तो तृणमूल कार्यकर्ता उसी में झूमते हुए पटाखे फोड़कर एक दूसरे को हरा गुलाल लगाकर बधाइयां दी और मिठाइयां बांटी। आईएनटीटी-यूसी परिवहन यूनियन के नेता राजू आलूवालिया के नेतृत्व में आसनसोल सिटी बस स्टैंड के समीप परिवहन यूनियन कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को हरा गुलाल लगाकर जश्न मनाया। इस मौके पर राजू आलूवालिया ने कहा कि यह लोगों की जीत है। बंगाल की जनता दीदी के साथ है। बंगाल का विकास टीएमसी ही कर सकती है। सांप्रदायिक ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह 2024 में भी पूरे देश की जनता जागरूक होगी और ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। भवानीपुर की जनता, जंगीपुर की जनता, जहाँ जहाँ हमारा विधानसभा का निर्वाचन हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, सब जगह से बीजेपी कांग्रेस सीपीएम का सफाया हो गया है। लोगों ने तृणमूल कांग्रेस प्रार्थियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और जितने भी विरोधी दल थे बीजेपी कांग्रेस सीपीएम सबका सफाया हो गया है। आने वाला 2024 में भारत की जनता खेला दिखाएगी, आवार खेला होवे और देखबें दिल्ली की प्रधानमंत्री गद्दी में ममता बनर्जी को जनता ने ठीक कर लिया। भारतवर्ष की जनता ने कि ममता बनर्जी 2024 में दिल्ली की केंद्र की प्रधानमंत्री जो है हमारी बनेंगी, ये ठीक हो गया है। और लोग जो हैं आज जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है, पूरे भारतवर्ष की नज़र आज के निर्वाचन पर टिकी हुई थी। भवानीपुर की जनता, जंगीपुर की जनता और जहाँ जहाँ हमारा निर्वाचन तीनों विधानसभा में हुआ है, लोगों ने जिस तरह से हमारी तृणमूल कांग्रेस नेत्री को अपना आशीर्वाद दिया है, हमारे तृणमूल कांग्रेस प्रार्थियों को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, आने वाला 2024 में जो है तृणमूल कांग्रेस का प्रधानमंत्री देखेंगे आप, दिल्ली में रहेगा ममता बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री के रूप में। भारत की जनता उनको जो है पेश करेगी और उनको समर्थन देगी। ये ठीक हो चुका आज। राजू आलूवालिया, आईएनटीटी नेता, आसनसोल राजू। 3টা বিধানসভা উপনির্বাচন হয়েছে। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএমের সুফরা সাফ হয়ে গেছে। ভবানীপুর জনগণ এবং জঙ্গিপুর যেখানে যেখানে আমার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে মানুষরা দু হাত তুলে আশীর্বাদ দিয়েছেন। সমস্ত জায়গা কিন্তু বিরোধী শূন্য হয়ে গেছে।
2024 লোকসভা নির্বাচনে আপনি দেখবেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেক্সট প্রধানমন্ত্রী যিনি হতে যাচ্ছেন মানুষ ভারতবর্ষের মানুষরা ঠিক করে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ নেবেন। ওই দিন 2024 সামনে চলে এসেছে। আজকে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া পুরো ভারতবর্ষে যদি কেউ নেতৃত্ব দিতে পারে, মানুষের স্বার্থে যে কেউ কাজ করতে পারে, জনগণের স্বার্থে যে কাজ করতে পারে, তার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ নেই ভারতবর্ষে, এটা প্রমাণিত হয়ে গেলে। আর ভারতবর্ষের জনতা এবার 2024-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের নেত্রীকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। 2024-এ আমাদের ভারতের নেক্সট প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন, এটা মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। राजू अलवाले INTU से नेता आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट PB न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तीनों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत विशेषकर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा से ऐतिहासिक जीत की खुशी पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल में मनाई जा रही है। उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत राज्य के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुकी है। वार्ड नंबर 20 के तृणमूल कार्यकर्ता रविवार सुबह से जीत का जश्न मना रहे हैं। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के पार्षद रामप्रसाद हलदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर के लोगों ने काफी मतों से लोगों ने वोट देकर जिताया है और कहा कि नंदीग्राम का बदला भवानीपुर के लोगों ने वोट देकर ले लिया है। मोदी अमित शाह का गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, जिस पर गाजे बाजे के साथ महिला तथा पुरुष कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर अबीर लगाकर तथा नाचते हुए ममता बनर्जी की जीत पर जश्न मनाया। इसके अलावा डीजे की धुन पर नाचते हुए रैलियां निकाली। इलाके की महिलाओं ने भी ममता बनर्जी की जीत पर खुशी मनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी हम लोगों की नेत्री हैं। भवानीपुर के लोगों ने ममता बनर्जी को वोट देकर जिताया है। अब बंगाल में और भी विकास की गंगा बहेगी। इसके साथ दुर्गापुर नगर निगम के 12 नंबर वार्ड आमलाई ग्राम में भी ममता बनर्जी की जीत पर जश्न मनाया गया। इस दौरान शाहबुद्दीन अहतर, अमित बनर्जी, हीरालाल आदि कार्यकर्ताओं ने बताया कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत को लेकर हम लोग खुशी मना रहे हैं। आज आप लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं पूरे आसनसोल पूरे बंगाल में? देखिए, आज हम लोग खुशी इस बात का मना रहे हैं कि बीजेपी का यह तीसरा विकेट गिर गया। बीजेपी का हार का खुशी मना रहे हैं। जीत का खुशी तो हम लोग 2 तारीख को मना चुके थे। ये तो सिस्टम था, माने हमारे कानून का सिस्टम था कि दीदी को दोबारा इलेक्शन जीत कर आना चाहिए। ये तो जश्न हम लोग 2 तारीख को मना चुके हैं। आज बीजेपी का हार का खुशी मना रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो आवाम पिछले 21 में जो वोट दिया था बीजेपी को, वो आज पछता रहे हैं कि हमने जो वोट दिया वो गलत पार्टी को दिया था। इस लोगों का जो विचारधारा को आज बंगाल में जो इलेक्शन बाय इलेक्शन दीदी के लिए हुआ, उसमें दीदी का जीत जो है ना, दरअसल बीजेपी की हार है। इसलिए आज हम लोग हार की खुशी मना, दीदी का खुशी तो हम लोग मना चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद परवेज है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट PB न्यूज। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT,
Euroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुलाब चक्रवात ने राज्य भर में तबाही मचाई है। जामुड़िया के बीरकुल्टी ग्राम में भी बारिश की वजह से पुल टूट गया है, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। चक्रवात खत्म होने के 3 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक पुल बनाने के लिए प्रशासन तत्पर नहीं दिख रही है, जिसके बाद लोगों ने खुद नदी के ऊपर पत्थर रखकर आने जाने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया है। गुलाब चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल में लगातार 2 दिन हुए भारी बारिश के कारण जामुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया फाड़ी अंतर्गत हिजलगोड़ा ग्राम पंचायत के बीरकुल्टी ग्राम में पुल टूट गई, जिससे आसपास के लोगों का संपर्क टूट गया। पुल टूटने के कारण बीरकुल्टी ग्राम, दशेर मोहन, जयनगर, दरबाडांगा, बाड़ुल सहित जामुड़िया से रानीगंज और आसनसोल का संपर्क टूट गया। इस कारण से इलाके के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में स्थानीय ग्राम निवासी मोहित बाध्यकर ने बताया, भारी बारिश के कारण पुल टूट जाने के कारण आसपास के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस पुल से सभी ग्राम निवासी, स्कूली बच्चे, रोगी अस्पताल आया जाया करते थे। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक पुल मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद मजबूरन यहाँ के स्थानीय निवासियों ने पत्थर रखकर आने जाने के लिए एक अस्थायी पुल बनाया है, ताकि इस दुर्गा पूजा के समय कुछ दिनों तक यातायात किया जा सके। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PB न्यूज। राज्य के उपचुनाव में टीएमसी को मिली जीत पर रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया के नेतृत्व में चापुई खास कोलियरी से एक जुलूस निकाला गया। भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी को मिली शानदार जीत से पूरे राज्य में तृणमूल समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। जामुड़िया, रानीगंज सहित पूरे कोयलांचल में रविवार को जीत की खुशी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से विजय जुलूस निकालकर रंग अबीर खेला गया।
इस क्रम में चापुई खास कोलियरी के निकट रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया के नेतृत्व में तृणमूल समर्थकों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। टीएमसी नेताओं ने कहा कि वो ममता बनर्जी की जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त थे। उन्होंने बताया कि इस जीत से साबित होता है कि हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया है। इनका कहना है कि बंगाल के हर तबके के लोगों ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का पश्चिम बंगाल में अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उत्सव मना जा रहा है आज के আমাদের উপচুনাव ছিল আমরা জানতাম কি দিদি জিতবে একটা আমাদের মার্জিনে অপেক্ষা ছিল আমরা জানি তিনটাই কিন্তু আমরা তিনটাই জয় হবে সেই জন্য আমাদের অপেক্ষা ছিল কি কোন মার্জিন কত জিতবে আমরা জানেন সারা পশ্চিম বাংলায় যা দিদি ডেভেলপমেন্ট করেছে মানুষগুলো সত্যভাবে পূর্তিভাবে দিদিকে ভবানীপুরে ভোট দিয়েছে আর আপনারা দেখছেন মার্জিনগুলো কত তাড়াতাড়ি 4টা রাউন্ডে দেখেছি 16,000 আমাদের মার্জিন হয়ে গেছে আর আমরা তিনটা উপচুনাव আমরা ভালো ভোটে জিতেছি আর এটা লক্ষ্মী ভান্ডার সরস্বতী কার্ডের দিদির দিন আছে আজকে পশ্চিমবঙ্গ চাहे বাঙালি हो चाहे बिहारी हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो দিদিকে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিয়েছে কোনো র্যাঙ্কিং হয় না কোনো ঝামেলা হয় না পশ্চিমবঙ্গে আমার মনে হচ্ছে না কি বিজেপি কোনো অস্তিত্বে থাকবে যে প্রিয়ঙ্কা টেন্ডুলকার বড় বড় কথা বলছিল আজ মনে হচ্ছে না কি বাঙালি কি পুরো দেশে বিজেপির কোনো অস্তিত্ব থাকবে কিনা এটা গোয়া আছে ত্রিপুরা আছে গুজরাট আছে ইলেকশন ইউপি আছে ওখানে কোনোদিন ক্ষমতা আসতে পারবে না আমাদের দিদি 2024 से प्रधानमंत्री। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सेंट्रल काजोड़ा कोलियरी के कुछ दूर में काजोड़ा ग्राम बागदीपाड़ा में एक बार फिर धसान देखा गया। ये धसान तालाब के अंदर बनने से सारी मछलियां जमीन के अंदर समा गई। हालांकि कोलियरी महाप्रबंधक का कहना है कि ये इलाका धसान प्रभावित है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। काजोड़ा एरिया के सेंट्रल काजोड़ा कोलियरी के कुछ दूर पर काजोड़ा ग्राम बागदीपाड़ा इलाके के एक तालाब में धसान होने से उसमें गांव के 2 युवकों की छोड़े हुए मछली पानी के साथ चली गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बागदीपाड़ा के लोग पहुंचे और कोलियरी एजेंट को इसकी जानकारी दी। एजेंट ने तत्काल धसान स्थल की सुरक्षा के लिए एसीएल के सुरक्षा कर्मी को भेजा। घटना के संबंध में बागदीपाड़ा के नरेन बागदी और बापन बागदी ने बताया कि 2 अक्टूबर के दोपहर के समय तालाब के अंदर अचानक धसान हो गई और उसका पानी नीचे जाने लगा। इसकी जानकारी जब हमें मिली तो हम लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन क्या कर सकते थे। एक तो धसान हुई है और पानी नीचे जारी है। तालाब की मछलियां सब छटपटाकर धसान के अंदर चली गई। इसके एक दिन पहले उसी तालाब के ऊपर धसान हुआ था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार तालाब के अंदर धसान होने से 35 क्विंटल मछली थी जो सब अंदर चली गई। इस तालाब से हम दोनों की रोजी रोटी, मछलियों का व्यवसाय भी चलता था। हम लोग प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। इस संबंध में महाप्रबंधक जयेश चंद्र राय ने कहा कि ये इलाका ही धसान प्रभावित है, लेकिन गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। केवल ईसीएल द्वारा जिस जगह से कोयला निकाला जाता है उस जगह पर ही गोफ बन सकता है, लेकिन उस जगह को मिट्टी से भराई कर दिया जाएगा। কাল 11:30 নাগাদ এখানে একটা ও জলের গতিতে মানে শূন্য হয়ে গেছিল, সেটাতে জল ঢুকছিল दिन रात কাল দিন। अच्छा আমরা জানতে পারি তখন আমরা বললাম যে এখানে জল বাইপাস হয়ে যাচ্ছে। কোন জায়গাটা? এটা কাজড়া বাগদিপাড়া। তারপর কাজড়া বাগদিপাড়া জানার পর আমাদের সব ছেলেকে বললাম যে এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা করলাম যে একটা সন্ধ্যের ভিতরে জল যাচ্ছে। আমরা বললাম আলোচনা করার পর তারপরে এখানে স্যানিটা কাজড়া সাহেব আর তোমার মুকুন্দপুরে এসে করে তড়িৎ করে কাচড়া ফেলে। আমরা বললাম যে এরকম হয়েছে ব্যাপারটা। কালকে 11:30 নাগাদ হয়েছিল। আজ রাত ভোর দিকে 3টে নাগাদে এই বড় সাবসাইট হয়েছে। এটা কি পুকুর? এটা বাঁধ। আচ্ছা, আপনারা কি করতেন? এটা চাষ করতাম, মোটামুটি 10 থেকে 15 বছর আমরা চাষ করছি। কি চাষ? মাছ চাষ। কতজন? আমরা 2 জন আছি। আচ্ছা, নরেন বাগদি, বাপন বাগদি। আচ্ছা, কত মাছ কত বছরে? মাছ এই বছর মানে 3 বছর মাছ এখানে রাখা ছিল, মোটামুটি 30 কুইন্টাল মতো মাছ।
মাছ একটা তোলা হয়নি। আপনারা কি চাইছেন? মাছ চাষের পর নির্ভরশীল। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি এসিলের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে যে আমাদের ক্ষতিপূরণটা দেওয়া হোক। এখনও পর্যন্ত এখনও আসেনি। আমরা কালকে বলেছিলাম আমাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক, তারপর আমরা যা করুন করুন, ভরাট করুন ভরাটটা করুন, কিন্তু আমাদেরকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণটা দিতে হবে। যেটুকু আমরা চাষ করি। তোমার নাম? আমার নাম সুকেন বাগদি, কাজর গ্রাম, বাগদিপাড়া বাসী। কি নাম? সুকেন বাগদি। কি মাছ কথা গেছে? মাছ মোটামুটি আপনার 20-30 কুইন্টাল মাছ ছিল। সে মাছটা গোটাটা কাল রাত্রে চলে গেছে খাদের নিচে। আচ্ছা, তো এই যে ক্ষতি হলো এটা নিয়ে কার কাছে আপনারা বলবেন? আমরা এখন এসিএল ম্যানেজমেন্টের কাছে আবেদন করব। আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাবো তার কাছে। আচ্ছা, গ্রামেরও তো ক্ষতি হতে পারে। গ্রামে ক্ষতি হতে পারে, ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা সবাইকে জানিয়ে রেখেছি। আমাদের গ্রামে যে পঞ্চায়েত মেম্বার আছে উনি কাল এসেছিলেন রাত্রে। কি নাম? বলেছেন বিরুরুই দাস। উনি বলেছেন আজকে বসে জিএমের সাথে আলোচনা হবে ওইটার ব্যাপারে। আচ্ছা, আপনার নাম? কত মাছ হবে কেটে গিয়েছে না? মাছ এটা 20-30 কুইন্টাল মাছ ছিল। একবার ধরেন না আপনারা? মাছ ধরা হয়নি, জল তো প্রচুর ছিল। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सारा भारत कृषक सभा का 40वां सम्मेलन रविवार आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन कृषक सभा के जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सरकार ने झंडा फहराकर किया। काजोड़ा ग्राम प्रगतिशील सांस्कृतिक परिषद में माकपा से संबंधित सारा भारत कृषक सभा पश्चिम बर्धमान जिला का 40वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन कृषक सभा के जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सरकार ने झंडोत्तोलन के साथ किया। इसके बाद शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया। सम्मेलन में 220 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में अंडाल थाना कमेटी दिलीप घोष, प्रदीप मंडल तथा जिला सचिव प्रियव्रत सरकार, अध्यक्ष विरोजाकांत राय ने अपने अपने वक्तव्य रखे। सभापति मंडली में प्रियव्रत सरकार और विरोजाकांत राय सहित 5 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में राज्य के कृषि और कृषक परिचर्चा की गई। सम्मेलन को सफल बनाने में दुर्गादास जमींदार, पोरेश मंडल, सुभाष खां और अन्य नेता समर्थक की मुख्य भूमिका रही। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কৃষি পূর্বে একই অবস্থা ছিল না, এখনো নেই। কাঁচামালটাকে বাদ দিলে তাই সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। এই যে কৃষির ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থা, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের সংগঠন বর্তমান অবস্থায় কি করে সংগঠনের কাজকর্মগুলো করবো, সমস্যাগুলো কি, কেমন করে কৃষককে আমরা রক্ষা করতে পারবো, সেই নিয়ে আপনাদের ভাবনা চিন্তা, আপনাদের অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা আমরা হচ্ছে যে সঞ্চয় করতে চাই আপনাদের কাছে। আমরা জানি যে কৃষক সভা কোন একটা রাজনৈতিক সংগঠন না, কৃষক সভা একটা গণসংগঠন, আমাদের একটা গণচরিত্র আছে। যে কোনো রাজনৈতিক দলের সাধারণ সদস্য অথবা সমর্থক তিনি অন্য রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে পারে, কিন্তু আমাদের কৃষক সভা সংগঠনের ওপর ধরে থাকতে পারে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এমন অবস্থা আছে যেখানে অন্য একটা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।